Chairman and Honorable Inaugurator Dr. Ashok Tejankar, Pro VC, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, couldn't come to this seminar. Still, it is my duty to welcome them. We have on dais the Principal D.D. Purankar sir, the Principal of Shiv Chhatrapati Arts College. I request to Honorable Principal to accept the presidential honor of this inaugural function. We have on dais the dignitary as an inaugurator, Honorable Dr. Dharmaraj Veer, Director KRC, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. I request Honorable Dr. Dharmaraj Veer sir to occupy the respective seat. We have Honorable Dr. Sanjay Bhatia, Associate Professor, Department of B.Ed, Firoz Gandhi College, Raebareli, UP. I also request Honorable Dr. Sanjay Bharti sir to occupy your respected seat. Honorable Bharat Jamdhare, Publisher, Apurva Publishing, Aurangabad. I recommend Dr. S.B. Yadav, organizer of this one-day multidisciplinary conference, and Dr. Mahajan sir, Dr. Chauhan sir. I also request all of them to occupy their respective seats. I heartily welcome all the participants, research scholars, journalists and students to this wonderful occasion. Now I invite all distinguished dignitaries on the dais to kindly proceed for a majestic and auspicious Laternatic ceremony and offer the garlands to the replica of the great man, Bharat Ratna, the father of Indian Constitution, Dr. Babasaheb Ambedkar, and the founder of Hindvi Swarajya, Chhatrapati Shivaji Maharaj, both the symbol of freedom, equality and fraternity.
area or a periphery. Since that humanity plays a greater number of roles in man's life, we need economics, we need sociology, we need psychology. All of things affects us and affects us in the same way. So as we chosen that theme, that Indian society and its problem. In the sense, it will help us to better understand the both past and present, because we are the witnesses of past, we are witnesses of present through the work of historical, through the work of architectures, as well as the literature ever produced in regional languages, whatever it may be. Because multiculturalism is the element of Asia. In the same way, it has a very core point to note that whenever we are living in the same society, all these factors are governing all our life by this or that way, in the same sense. You may took it up to the Facebook or WhatsApp or the social media. It has affected certain parameters. We notice whenever we go for today's newspaper, we notice that some student at that point committed suicide because of Facebook, because of PUBG. Means all these factors we deny or not, but they are affecting us by this or that way. In the same sense, we have chosen this theme and we discussed a lot about it. So that what are the social problems that humanities plays a vital role in that sense. Most of all the forms of social issues and problems, religious practices and beliefs we practice in our day-to-day life, because we live in that way. Almost all the forms of social issues and problems and their origins and religious and cultural practices of all India is followed all over. These social problems are developed in a long period of time, and they are still continuing one from another up to the present. Furthermore, India has witnessed several large proportions, several foreign invaders, they have been attacked in Indian social structure, Indian religious structure in that way. We are the witness of that. Right from the Mughals came to India up to the British empires, although they invaded our land, but we have, it is our right, it is our prime duty that we have accepted certain cultural changes in the real sense of the word. Because although they invaded, therefore we chosen this subject purposely in that sense. Therefore, purpose of organizing this particular very brief and concise introduction. I remember a few lines here. To fly in the air, it needs to have a success in the life. It needs the inspiration of the thoughts of the great man. Now it is time to invite today's specialty, a very dynamic personality. Today's inaugurator, Dr. Dharamraj V, the director, KRC Library, Dr. Babasaheb, to give introductory speech, to give inauguratory speech. Namaskar. Dignitaries on the dais and off the dais. Today's one-day multidisciplinary national conference. The chairperson of this conference, respected the principal of this college, Dr. D.D. Kurunga sir. The another dignitaries, especially that came from the Bareilly, Uttar Pradesh, Adyaji. The organizing secretary of this college, Vilas Mahajan, Shivaji Yadav, Nalawade sir, Chauhan sir, Jamdari ji, and all other dignitaries available on the dais, and all delegates, those who came from the various corners of India. First of all, I appreciate and very congratulate to the organizer who had chosen a very burning issue as a theme of this multidisciplinary national conference, that is Indian society, problems and solutions. And considering the importance as such of this theme, the organizers have got a lot of experience, and authors have also written
more than 150 papers. And organizers have published a very beautiful and informative proceeding. It is published in the peer-reviewed journal known as Apurva Knowledge. And as per the publisher's opinion, the impact factor of that, such a type of event, it may be an international conference or the national conference or the state level conference, organized at metropolitan cities only. But nowadays, the trend has been completely changed. Now, with the help of dynamic agencies all over India, the AICTE, so many agencies are there. With the help of such a type of agencies, the Indian institutions are organized such a type of beautiful events not only in metropolitan city but also at taluka places. And this is a good sign, not in the field of library and information science, but also in the field of variety of disciplines. For that purpose, the today's theme is more important, that is Indian society problems and solutions. Now India is having the problem. It may be a socio, it may be a economic, it may be a financial, it may be a health problem, it may be a agriculture related problem, it may be a political problem, it may be a psychological problem, it may be an educational problem, it may be an international level problem or the commerce problem. There are immense problems are there, especially in Indian society. And considering the importance of this theme, the authors has written a very informative papers. It may be in Marathi or it may be in English. And this beautiful document which will be helpful to the all Indian societies and especially for strengthening in previous days and considering the impact of information technology on each and every field. In each and every discipline there are problems. In politics, there are a lot of problems. But as per my opinion, internal politics is the major problem. Politics मध्ये problem तर आहेतच, पण internal politics हा major problem मला. घराघरात politics असतं, पण internal disputes, that is the major problem. That is the major barrier in each and every development, especially in each and every disciplines. And for that purpose, if you see in India or abroad, each and every institutions are pursuing for quality, equality and quality. And quality as such, at national level, there are so many agencies are working for maintaining the quality in higher educational institutions. It may be a NAC. NAC is performing the duty for their Government of India is emphasized on ranking of institutions in India. As you completely aware about, if you see the current scenario of the ranking of institutions all over the India, and if we compare this scenario to the abroad, it shows that this is the current scenario of our Indian higher educational institutions in India. And for that purpose, institutions, for that purpose, NIRF, that is National Institutional Ranking Framework, is working. And All India Survey of Higher Education, or if you visit to the ugc.ac.in, as per the use of especially colleges, number of colleges or the quantum of colleges in the state of Maharashtra and UP. If you see, this college is a single program college. And Chhatrapati Shivaji Mahavidyalaya, Kacho, is running a single program.
that is the art faculty only. And as per the latest report, there are all institutions are pursuing for quality and quality. For that purpose, if you see the gross enrollment ratio of Indian higher educational scenario, it shows that 25.8%. हा 25.8% आहे काय नेमका? 18 ते 23 या वयोगटातले जे एज ग्रुप आहे, खास करून विद्यार्थ्यांचा जो शिकतोय त्याचा हा रेशो आहे 25.8% of India as per the latest report of India. And if you see the current scenario of the research in India, if you see the total enrollment of India and if you compare the research productivity of India, hardly below 0.5%. 0.5%. That means the latest report of Government of India, 34,400 PhD degree are awarded all over India during 2017. That's the fact. And art and humanity is on rank first, followed by the science, and then on third number there is engineering. Okay. This is the current scenario about this, especially research productivity of India. And for that purpose, if you see the quality as such, the NAC has given a latest report, and there are 5,600 plus institutions are re-accredited by NAC. In current scenario about the NAC re-accreditation and the accreditation, Maharashtra is on rank first all over India, because 1,083 colleges or institutions are accredited by the NAC. However, 23 universities in Maharashtra are accredited by NAC. This is the current scenario about the NAC. That means Maharashtra is always in pursuing how to maintain the quality as such, and for that purpose, Maharashtrian in the universities or the Maharashtrian higher education institutions are emphasizing on the re-accreditation and the accreditation with the help of that NAC point of view. For that purpose, if you see the research productivity as Government of India, जे आज माझ्या हातामध्ये हे पुस्तक आहे, and if you see the Government of India's norms and standards and the regulations, Government of India, especially if you see the guidelines of NIRF, the guidelines shows that the Scopus database is on rank first. Because, and on second stage, Web of Science, and on third, Indian Citation Index, and fourth one is, that is open source, that is Google Scholar. That means, with the help of such a type of very scholarly database, if you see the scenario about the research productivity of about the world, आपण अमेरिकेकडे नेहमी पाहतो, आणि अमेरिकेकडे पाहत असताना अमेरिकेची लोकसंख्या आहे तरी किती नेमकी, जगाच्या 4% पेक्षा कमी असलेला तो अमेरिका आज रिसर्च प्रोडक्टिव्हिटी मध्ये नंबर 1 वरती आहे. नंबर 1 वरती आहे. With the help of that Scopus database, there are 1 crore 80 lakh plus research document on the account of United States. However, China हा पॉप्युलेशनच्या बाबतीत नंबर 1 वरती आहे, मात्र रिसर्च प्रोडक्टिव्हिटी नंबर 2 वरती आहे. China is on rank second with the help of that Scopus. This is productivity, because on the account of China there are more than 61 lakh research documents. Our India is on rank 9th. आम्ही काय थोडं पॉझिटिव्ह अँगलनं पाहतो की काही असताना आम्ही टॉप 10 मध्ये आहोत. आपण 9 नंबरला आहोत, आपण टॉप 10 मध्ये तर आहोत. दुसरं आम्ही कधी म्हणतो ठीक आहे आमचं बानू टॉप 100 मध्ये आहे. हे समाधान मानण्याची गोष्ट आहे. ती एम प्रकारे आम्ही समाधान मानतो, परंतु we should have to emphasize on this burning issue, how to face, how to pursue it, especially for competition as such, especially for quality as such. And for that purpose, if you see the current scenario about the Maharashtra, Pune University under the top 10 university all over India. आपण हे तर काही झाकू शकत नाही.
आपण हे दाखवू शकत नाही. समजा मी एखाद्या कुठल्या प्रेझेंटेशनला गेलो आणि त्या ठिकाणी म्हटलं की नाही आमच्या विद्यापीठामध्ये अमुक अमुक तुम्ही इंटरनॅशनल लेवलचं एक विद्यापीठाशी करार करा, आमचं विद्यापीठ फार चांगलं आहे, आम्ही कितीही कालवट केली तरी आता बाय सिंगल क्लिक each and every information is made available with the help of such type of maybe Scopus or maybe Cycle database. आता काय करतात इंटरनॅशनल एक्सपर्टाइज, काय करतात डायरेक्ट ते डेटाबेस ओपन करतात. तुम्ही बांबूचं फार कौतुक कराले का, मग आम्ही बांबू काय आहे हे बघतो आणि बांबूचं काय करंट सिनेमा ते पाहतात. मग इट मे बी अ बांबू, इट मे बी शिवाजी युनिव्हर्सिटी, इट मे बी मुंबई युनिव्हर्सिटी, इट मे बी पुणे युनिव्हर्सिटी, आणि विथ द हेल्प ऑफ दॅट सिंगल क्लिक we come to know that what is the current scenario about the research productivity, what is the current scenario about the patent. सगळ्या गोष्टी सिंगल क्लिक वरती एका सिंगल प्लॅटफॉर्म वरती उपलब्ध आहेत. आणि म्हणून if you see the current scenario about the Maharashtra, Pune University definitely it is on the rank first, because Pune University is having 16,134 research documents. काल संध्याकाळी 5चा डेटा आहे, कारण मी कुठल्याही स्टेज असताना मी अगोदर इंटरनेट सर्च करतो आणि लेटेस्ट रिपोर्ट काय सांगतो हे पाहत असतो. बामू इज ऑन रँक 8 इन महाराष्ट्र. बामू 5व्या रँकवरती आहे. सगळ्यात जुनं विद्यापीठ भारतात आपण बघतो मुंबई विद्यापीठ, सगळ्यातलं जुनं ते विद्यापीठ नंबर 2 वरती आहे, आणि शिवाजी विद्यापीठ नंबर 3 वरती, नागपूर युनिव्हर्सिटी नंबर 4 वरती आणि बामू 5 वरती. एसएमटी अर्थात छोटं युनिट आहे, अर्थात 10व्या नंबर असणं अपेक्षित आहे. बट इफ यू सी द टोटल नंबर ऑफ रिसर्च डॉक्युमेंट्स ऑल ओव्हर द इंडिया or all over the world, the 60% contribution contributed by the United States itself. 60% कॉन्ट्रीब्युशन हे युनायटेड स्टेट्सचं रिसर्च डॉक्युमेंट मध्ये ऑल ओव्हर वर्ल्ड. However, 50% contribution within the Maharashtra from Pune University itself. Hey, this is the fact of research productivity about the research document. It may be a research paper, it may be a reviews, it may be a chapters, it may be that means those which is indexed in such type of scholarly databases. And म्हणून I am also comes under the faculty of social science, and now as per the new norms, interdisciplinary approach मध्ये आणलो. All these faculty other than sciences should have to emphasize on such a type of very burning issue, how to strengthen the quality research, and it should be reflected in such a type of scholarly databases. Then and then only जे फोकस आहे तो खऱ्या अर्थानं आपल्या समोर येऊ शकेल. आणि म्हणून त्या अनुषंगानं आपल्याला विचार करण्याची गरज आहे. आणि कुठलंही युनिव्हर्सिटी, कुठलंही इन्स्टिट्यूट, कुठलंही कॉलेज, इट मे बी अ सिंगल फॅकल्टी ऑर द मल्टी फॅकल्टी, अशा कॉलेजमध्ये जोपर्यंत फ्रीडम मिळत नाही तोपर्यंत डेव्हलपमेंट ॲज सच होत नाही. आणि फ्रीडमसाठी व्हिजन जोपर्यंत आहे त्यावेळेस फ्रीडमला यावं. सगळ्याच गोष्टी जे डिपेंड अपॉन ईच अदर आहे. आणि म्हणून फ्रीडमही असलं पाहिजे, विजनही असलं पाहिजे, आणि मग काहीतरी डेव्हलपमेंटला स्कोप असतो. आणि त्या अनुषंगाने मग कुठलीही संस्था असेल ती संस्था ही अत्यंत चांगल्या पातळीवरती डेव्हलप होऊ शकते. मी तर असा म्हणेल की ईच अँड एव्हरी कॉलेजेस, इट मे बी अ सिंगल फॅकल्टी ऑर द मल्टी फॅकल्टी, they should have to appoint one person, independent person, especially for UGC or the ICSSR or the AICTE or the DST. कारण तुम्हाला फंड जर खेचायचे असतील तर त्याला टीचिंग करत करत पुन्हा हे करा ते करा ते करा, ऑफिस बघा, ऍडमिनिस्ट्रेशन बघा, मग तारेवरची कसरत करावी लागते. मग इंडिपेंडंट फक्त त्याने UGC चक्रा मारायच्या, ICSSR ला चक्रा मारायच्या, AICTE ला चक्रा मारायच्या, DST ला चक्रा मारायच्या, then definitely we will get the fruitful results, especially for development of any institutions. आणि म्हणून या अनुषंगाने प्रॉब्लेम्स हे सगळीकडे, प्रॉब्लेम्स कुठल्या फील्डमध्ये नाही, प्रत्येक ठिकाणी प्रॉब्लेम्स आहेत. आणि प्रॉब्लेम किंवा समस्या हीच खऱ्या अर्थानं संशोधनाची जननी आहे. आणि जर संशोधनाची जननी समस्या आहे तर समस्या असणं काळाची गरज आहे. आणि समस्या असेल तर आपण त्यावरती सोल्युशन काढू शकू. आणि म्हणून त्या अनुषंगाने
we should have to emphasize on such type of burning issues, that is the Indian society problems and prospects, and how to solve the problems with the help of such type of beautiful beautiful जो भी कितना अच्छा माहौल है. मैं समझ रहा था, मैं जब ऑर्गेनाइजर पूछा yesterday कि भाई कितने पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, कारण आजकल तो एक फार मोठा प्रश्न आहे. कारण आजकाल सिंगल फॅकल्टी वेगळ्या कॉन्फरन्सेस, जे कॉन्फरन्सेसला काही लिमिट नाही, कॉन्फरन्सेस प्रचंड कॉन्फरन्सेस आहेत, आणि दॅट इज द गुड साईड. कारण मी इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स अटेंड केल्या, हार्डली 20 ते 50 पार्टिसिपंट्स, आणि त्यामध्ये जे हेल्दी डिस्कशन असतं ते एक वेगळं डिस्कशन असतं. म्हणून नंबर ऑफ पार्टिसिपंट्स इज नॉट मोर इम्पॉर्टंट, परंतु तरीही या ठिकाणचे पार्टिसिपंट्स रिअली म्हणजे आय रिअली अप्रिशिएट सर युअर इफर्ट्स विच यू आर कमिटेड विथ युअर टीम. तुमच्या कमिटीनं तुमच्या टीमनं जे स्पिरिट जे आहे तुमच्या खास करून टीमवर्क मधलं, तर दॅट इज अ व्हेरी ॲप्रिशिएबल स्पिरिट. अँड फॉर दॅट पर्पज किंवा एवढं मोठं सारा म्हणजे माहोल या ठिकाणी येतोय, आणि मल्टीडिसिप्लिनमध्ये खास करून वेगवेगळे विषय हा इथला एक मजेशीर आणि अत्यंत वेगळे विषय. कारण एक विषय नाही, अनेक प्रकारचे विषय या ठिकाणी टच केले जातील, आणि त्या अनुषंगाने एक हेल्दी डिस्कशन या ठिकाणी होऊन जाईल, आणि त्याच्या माध्यमातून अत्यंत चांगल्या प्रकारचे या ठिकाणी रिझल्ट्स आपल्या समोर येतील. डेफिनेटली आय वन्स अगेन thanks to the organizer, and I declare this conference has been inaugurated. Okay, thanks once again. Thank you, sir, for your innovative and inspirational speech, and peeping into various problems and challenges before our society, and evoking us on this beautiful occasion. Now I request Dr. Banayat sir to felicitate Dr. Bagal sir presenting a bouquet. Thank you, sir. ज्योतिबा फुले, संत गाडगे, डॉक्टर अंबेडकर, शिवाजी, न जाने कितने नाम. मैं सबसे पहले इस धरती को प्रणाम करता हूं और उन सभी महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं. इस एक दिवसीय अंतर विषयी राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर उपस्थित मंच पर विराजमान डॉक्टर धर्मराज वीर सर, इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर डी पुराणकर सर, अपूर्वा पब्लिशिंग हाउस के पब्लिशर श्री भारत जमदड़े सर, इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर शिवाजी यादव सर, को ऑर्गेनाइजर विलास महाजन सर, और इस कॉलेज के समस्त डायस पर बैठे प्राध्यापकगण और हमारे सामने उपस्थित विद्यार्थी और इस शहर के महानुभाव लोग, आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं भारतीय समाज सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन. मित्रों, सबसे पहले तो हम ये सोचें कि क्या हम एक सोसाइटी हैं. इन टर्म्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्या हम एक समाज हैं? हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि क्या हम एक समाज हैं?
क्योंकि एक समाज कैसा होता है, प्रॉब्लम्स पर तो, सॉल्यूशन पर तो हम बाद में आएंगे। एक समाज, पहले हम समझेंगे ये समाज, भारतीय समाज है क्या, एक समाज कैसा होता है। यहां पूरे भारतीय समाज की बात हम कर रहे हैं। समाज वो होता है जिसमें उसमें उस समाज के लोगों के सुख और दुख साझा होते हैं। क्या भारतीय समाजों के सुख और दुख साझा हैं? बोलिए, ये हमारा प्रश्न है सर, कि क्या भारतीय समाज के सुख और दुख साझा हैं? और अगर नहीं है तो हम समाज नहीं। संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमें अभी समाज बनना है, और आजादी के इन 70 सालों बाद भी हम समाज बन नहीं पाए हैं। बल्कि हमें तो यह अनुभव होता है कि जैसे जैसे राजनीति बढ़ रही है, अभी धर्मराज सर ने जो है अभी चर्चा की ना कि इंटरनल पॉलिटिक्स, जैसे जैसे समाज आगे, जैसे जैसे हम और आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा समाज और विकृत होता जा रहा है, वैसे वैसे हम और विखंडित होते जा रहे हैं। क्या हमारे समाज में कोई ऐसा मुद्दा है जो एक जैसा दिखाई देता है? क्या हमारे समाज का सुख और दुख साझा है? अगर ऐसा नहीं है तो हमें अभी समाज बनना। मित्रों, एक समय था जब, अब आप यहां ये समझिए कि गरीब होना अलग चीज है, और जो यहां इस समाज की जो डिस्पैरिटी है वो अलग चीज है। एक समय था जब हमारे पास खाने को अनाज नहीं था, हम इंपोर्ट करते थे। आज समय है कि हमारा अनाज सड़ता है, और हमारे लोग, वो भी जब हम इंपोर्ट करते थे तब शायद कम लोग भूख से मरते रहे होंगे, किसान कम आत्महत्या करते रहे होंगे। आज जब हम अनाज इंपोर्ट करते हैं, तब जब हम अनाज इंपोर्ट करने की स्थिति में है और गोदामों में अनाज सड़ने की स्थिति है, सड़ जाते हैं, तब हमारे इस देश में लोग आत्महत्याएं ज्यादा कर रहे हैं, लोग भूख से ज्यादा मर रहे हैं। विडंबना देखिए, जब हम इंपोर्ट करते थे तब लोग उतना नहीं मरते थे, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं, अनाज सड़ाने की स्थिति या सड़ जाते हैं, तब हम ज्यादा मर रहे हैं। तो किसी भी समाज की दो बातें होती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। दो चीजें किसी भी समाज को वो करता है कि अगर उस समाज में शिक्षा है और स्वास्थ्य है तो वो समाज समाज होता है। अभी 3-4 दिन पहले एक सर्वे निकला, स्पेन नेम्ड वर्ल्ड्स हेल्थीएस्ट कंट्री। उस सर्वे में ये आया कि टॉप 10 जो स्वस्थ देश हैं, उन देशों में स्पेन नंबर 1, इटली नंबर 2, आइसलैंड नंबर 3, जापान नंबर 4 और स्विट्जरलैंड नंबर 5, और हमारा देश 120वें नंबर पर। चाइना 52 नंबर, श्रीलंका 66, श्रीलंका हमसे बेहतर, बांग्लादेश हमसे बेहतर 91, नेपाल हमसे बेहतर 120, 110, इंडिया 120, पाकिस्तान 124 और अफगानिस्तान 153। कुल 169 देशों के सर्वे में हेल्थ में हम, एजुकेशन में जैसा कि हम सब जानते हैं 200 देशों में, 200 यूनिवर्सिटियों में कहीं नहीं, 200 यूनिवर्सिटियों में कहीं नहीं।
देशद्रोही के इस पावन भूमि पर जन्मे महात्मा फूले ने जब संघर्ष शुरू किया तो उस समय जो उनके पूरे संघर्ष के बाद उन्होंने जो निचोड़ दिया, आप सब लोग उसको जानते होंगे। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, नीति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया और वित्त बिना शूद्र गए। इतने अनर्थ एक अविद्या ने की। विद्या की जो स्थिति है रसातल पर, वो हम सब लोग जानते हैं। मित्रों, भारत का संविधान, किसी भी देश का संविधान और संविधान की प्रस्तावना, वो उस पूरे देश के, उस देश के समाज के स्ट्रक्चर का हिस्सा होती है। वो क्या चाहता है, वो देश क्या चाहता है, ये वो बताती है। हमारे देश के प्रीएम्बल में क्या है? 4 मुख्य बातें, आप लोग प्रीएम्बल याद कीजिए। 4 मुख्य बातें: लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। क्या हम इनकी कल्पना कर सकते हैं? आज 70 साल बाद हम क्या बराबर हैं? हम क्या स्वतंत्र हैं? हम क्या भाईचारा हमारे अंदर है? हमें क्या न्याय मिल रहा है? 70 साल किसी देश के लिए कम नहीं होते। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है कि जो नए सर्वे आ रहे हैं उनमें हिंदुस्तान के बारे में यह हो रहा है कि भारत की आधी से ज्यादा 60-70%, 80% जो इकोनॉमी है वो 1% लोगों के पास है। इवन 100 लोगों के पास, भारत के 100 ऐसे लोग हैं जो भारत की संपदाओं के 60-70% पर उनका कब्जा है। और जो 30% है, 20% है, उसमें 99.9% लोग जी रहे हैं। इतनी भयानक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। तो हम समझ सकते हैं कि हम कहां हैं, हम कहां खड़े हैं। बारूद के ढेर पर, अगर हम सब पढ़े लिखे हैं, हम लोग जो है कॉलेज से, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, अगर हम घर में बैठ के सोचें तो हमें ये महसूस होगा कि हमारा देश बारूद के ढेर पर खड़ा है। एक तो हमारे समाज में 2 चीजें, नंबर 1 जातीय विभेद और नंबर 2 इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। जातीय विभेद इतना लंबा, इतना कि हम उस पर अभी आएंगे, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कि एक तरफ आसमान है, दूसरी तरफ खाई। रूसो ने कहा था कि किसी के पास इतना धन नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे को खरीद सके, और किसी के पास इतना कम धन नहीं होना चाहिए कि वो बिकने पर मजबूर हो जाए। आज इतने धनवान लोग हैं कि आइलैंड खरीद रहे हैं, और वो कुछ लोग, और मैक्सिमम लोग इतने गरीब हैं जिनको खाने के लिए बिकने को मजबूर है। ये है हमारा समाज। अब मुश्किल यह है कि इन दोनों के बीच भाईचारा बनना, क्योंकि जो जहां है वहां से वो नीचे उतरने को तैयार नहीं, और जो जहां नीचे है वो ऊपर उठने को तैयार तो है, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं।
उसके पास अब अवसर नहीं, वो कैसे ऊपर उठे। इस भीषण आर्थिक असमानता को हम कैसे दूर करें? इस भीषण आर्थिक असमानता को हम कैसे दूर करें? क्यों? क्योंकि जब तक ये जाति विभेद और ये आर्थिक डिस्पैरिटी दूर नहीं होगी, तब तक हम डेमोक्रेटिक नहीं होंगे। डेमोक्रेसी अब्राहम लिंकन का जो है हमको लगता है कि उससे बढ़िया परिभाषा किसी ने नहीं दी डेमोक्रेसी की। कि डेमोक्रेसी क्या है? टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो डेमोक्रेसी एक सपना, केवल वोट देने तक। क्या डेमोक्रेसी जनता के लिए है? जनता द्वारा तो होती है, लेकिन जनता के लिए होती है। जैसे ही हमारा चुनाव बीतता है वैसे ही जनता कहीं और होती है और जीत के जाने वाले कहीं और, वो फिर एनार्की में बदल जाती है। एनार्किज्म इन डेमोक्रेसी। तो वो डेमोक्रेटिक, हम जब तक डेमोक्रेटिक नहीं होंगे, सही मायने में डेमोक्रेटिक नहीं होंगे, तब तक चीजें नहीं सुधरेंगी। ग्लोबल कॉन्सेप्ट में अब ये देखिए कि हुआ कैसे। आजादी के पहले और उसके भी पहले, लगभग जब मुगल आए, मुगलों से पहले, हम अगर अशोक का भारत देखें तो सम्राट अशोक का भारत कैसा था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। आज हम पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं तो देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है। क्या अब पाकिस्तान के बारे में मतलब दो बातें मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्या आज की जो स्थिति है पाकिस्तान को लेकर, क्या वो उचित है? घृणा, जितनी घृणा है, क्या वो उचित है? सन 47 के पहले वो हमारा भाई ही तो था। क्या एक घर में दो भाई आपस में नहीं लड़ते? तो क्या एक भाई दूसरे भाई से उतनी ही घृणा करता है जितनी घृणा आज हम पाकिस्तान से या पाकिस्तान हमसे कर रहा है? म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये बृहद भारत, बृहद भारत को क्यों, कैसे जो है वो इतना संकुचित किया गया? आज अगर बृहद भारत की बात कीजिए तो लोग कहेंगे कि अरे वो देश चल नहीं पाएगा, अरे ऐसा होगा वैसा होगा। यही इतने में जो आज का इंडिया है, उतने में ही इतनी विविधता में, अनेकता में एकता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आप साउथर्न स्टेट चले जाइए, नॉर्थर्न वाले को देख के वो मतलब उस तरह से जैसे वो करते हैं कि ये कहां से आ गए। हम विविधता में एकता की, अनेकता में एकता की बात करते हैं। और देखिए आप तो जाकर महसूस कीजिए जरा कि क्या वाकई में नॉर्थ चले जाइए, क्या वाकई में पब्लिक मतलब हम उसकी ये पूरा बृहद भारत को एक साजिश के तहत, अगर आप हमारी बातों को गौर करेंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये ऐसा हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। भाई अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आज हमारे देश में 33 या 36 कितने स्टेट हैं? जो भी 29। तो वो वहां कुछ आए थे, कुछ ज्यादा नहीं आए थे, और वो यहां आके यहां के लोगों के बीच अपनी क्रेडिट स्थापित की। और जब उन्होंने समझा
तो समझने के बाद फिर उन्होंने देखा कि ये आपसी समझ वाला समाज है, तो इस आपसी समझ वाले समाज को कैसे बिगाड़ा जाए। तब उस समय जो बुद्ध का समाज था, उस समय उसमें 3 तरीके के वो लोग थे, ब्राह्मण, श्रमण जिनको क्षत्रिय श्रमण, और सूण व्यापारी वर्ग। ब्राह्मण मतलब आज का ब्राह्मण नहीं, वो 5, 6, 7 उसमें बटे हुए थे। कैसे? संक्लेश, श्रोतापन, संकृतागामी, अनागामी, अरहत, पच्चेक बुद्ध, सम्यक संबुद्ध। बुद्ध मतलब कोई व्यक्ति नहीं, हम क्लियर कट कर देना चाहते हैं कि अन्य व्यक्ति होता था। श्रोतापन जो श्रद्धालु होता था, सामान्य व्यक्ति से थोड़ा ऊपर, जो अपने चित्त को निर्मल कर ले, के सामने लगाते हैं बोधिसत्व बाबा साहब। और फिर सम्यक संबुद्ध, जो अपने को इतना प्योर कर ले कि वो उसको वो चीजें अपने उसमें चला जाता था। उस समय के जो ये बुद्ध थे या ब्राह्मण थे या जो अरहत जिनको ब्राह्मण कहा जाता था, ये लोग बहुत सम्मानित लोग। तो आर्यों ने सोचा कि क्यों नहीं इस समाज में जो सबसे सम्मानित वर्ग है, हम उसी में घुस जाए। और वो टाइटल उन्होंने अपना लिया। अब धीरे धीरे यहां पर हम आपको एक बुद्ध के समय की कहानी सुनाना चाहेंगे। वो जिसकी राजधानी लिच्छवी थी, वो अपना आराम से रहते थे, खूब बढ़िया उनका जो है अमन चैन से रहते थे, आपस में प्रेम था। तो मगध के राजा ने सोचा कि क्यों न वैशाली को अपने में मिला, बस अपना मंत्री भेजा वर्ष का जो ब्राह्मण था कि जाके भगवान से पूछो कि हम जो है वैशाली पर आक्रमण करके उसको अपने में मिलाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2-3 प्रश्न पूछे कि क्या वहां के लोग धर्म का पालन करते हैं, क्या वहां के लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, क्या वहां के लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, नहीं करते, तो तुम उनको जीत नहीं सकते। तो वर्षकार ने कहा राजा से कि सर वो तो कह रहे हैं कि आप जीत नहीं सकते भगवान, लेकिन एक उपाय है जिससे आप जीत सकते हैं। कहीं क्या बताओ? कहीं कि आप मुझको यहां से अपने राज्य से बेइज्जत करके निकाल दीजिए और ये सूचना वैशाली को भेज दीजिए कि वर्षकार को बेइज्जत करके मगध से निकाला गया। और उन्होंने धीरे धीरे, वो है ना कि 2 लोगों से कि जैसे एक इनके कान में जाके किसी ने कुछ कहा और कुछ कहा नहीं, ये 2 लोग मित्र हैं, एक आदमी जो इनके कान में कुछ कहा, उनके कान में कुछ कहा, ये सोचे कि उनसे उन्होंने मेरी बुराई बतियाई होगी, वो सोचे कि इनसे उन्होंने मेरी बुराई बतियाई होगी, ये दोनों आपस में लड़ने लगे जिसको लड़ाना है। वर्षकार ने वही काम वैशाली के लोगों में किया और साल भर बाद लौटा तो उसने वहां कहा मगध में कि अब आप लड़ाई करिए, वहां के लोगों के बीच प्रेम नहीं रह गया है, अब आप जीत सकते हो। देखिए कैसे जो है, और वो अंत में उन्होंने वैशाली को जीत लिया। तो कैसे इस तरह से जो है वो होता है। मेडिटेशन किया, मीडिएटर बने और धर्म का आवरण फैलाया कि ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है, तुम उसी स्थिति में रहो, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है। वो उस स्थिति में इसलिए है कि वो उनके पूर्व जन्मों का फल है। कर्म को हटा दिया कि तुम अवसर छीने गए और कर्म से उनको च्युत कर दिया गया। आप अवसर छीन लिए, चलिए कोई बात नहीं, अगला आदमी खुद अवसर ढूंढ लेता।
है ना, लेकिन कर्म से भी हटा दिया, उसको यथास्थितिवादी बना दिया कि जैसे हो वैसे ही रहो, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो वो अपनी जंजीरें खुद तोड़ देगा। इसीलिए कांसीराम कहते थे कि इनको गुस्सा दिलाओ, ये जो ये वर्ग है, जो ये समाज है जिनके पास कुछ नहीं, हैव नॉट्स, जो हैव नॉट्स का समाज है, वो चाहे जिसका समाज हो, जिनके पास कुछ नहीं है, जो इस देश के 99% हैं, उनको गुस्सा दिलाओ। गुस्सा दिलाओगे तब वो कुछ करेंगे, क्योंकि जैसे हाथी होता है ना, हाथी को उसको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है, इसलिए हाथी को गुस्सा दिलाना पड़ता है तब वो कुछ करता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तब वो जंजीरें अपनी तोड़ देंगे। मित्रों, उसके लिए राजनीति से कुछ नहीं होना है, जो कुछ होगा वो कल्चरल से होगा, सांस्कृतिक आंदोलन से होगा और या फिर सामाजिक आंदोलन से होगा। सांस्कृतिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन, इसकी नींव डॉक्टर अंबेडकर ने 1919 में रख दी थी। 1917, 1919, 1931, चलते चलते 1917 में साउथ बैरो कमेटी के सामने, 1917-1919 साउथ बैरो कमेटी के सामने उन्होंने एक प्रस्ताव रखा इंग्लैंड में। उन्होंने कहा कि यहां दो तरीके के समाज रहता है। एक तरीके का समाज जो है जिनके पास सब कुछ है, और एक तरीके का ऐसा समाज है जिसके पास कुछ नहीं। जो कुछ नहीं वाला समाज है उसका नेतृत्व जो सब कुछ वाला समाज है वो करता है। ऐसे में ऐसे को बाबा साहब कहते हैं कि, मैंने अपनी किताब में लिखा है, ऐसे को बाबा साहब कहते हैं, सुनिएगा, कि कोई भी कौम कितनी भी बुद्धिमान क्यों न हो, दूसरी कौम की अच्छी संरक्षक नहीं हो सकती। इसलिए वे वंचितों को दूसरे के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहते, उन्हें वे सक्षम बनाना चाहते थे ताकि वे अपना भला स्वयं कर सके। इसके लिए वे वंचितों के बीच जवाबदेह नेता तैयार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने वंचितों की, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे और आगे, मतलब एक कहने मतलब कोई भी एक कौम चाहे जितनी भी बुद्धिमान क्यों न हो, वो किसी दूसरी कौम की संरक्षक नहीं हो सकती। उस दूसरी कौम को अपने ही बीच का, भले वो कम बुद्धिमान हो, अपने ही बीच का संरक्षक उसको चुनना पड़ेगा, अपने ही बीच के लोगों को उसको नेता बनाना पड़ेगा, अगर उसको अपनी कौम का भला करना है तो जब 1900, अभी हम इस पे बाद में जो ये फाइनल वो है कि आपके प्रॉब्लम के साथ सलूशन, प्रॉब्लम तो हो गया एक जाति व्यवस्था, दूसरा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सलूशन बाबा साहब ने जो दिया, इस पर डिस्कस करने से पहले उसके हम थोड़ा सा उसमें चलते हैं कि जब उन्होंने साउथ बैरो कमेटी के सामने, जिसको हम कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे, वो रखा, तो इसका गांधी ने विरोध किया। वो आरक्षण तो चाहते ही नहीं थे, ना उन्होंने पूरे संविधान में कहीं आरक्षण का जिक्र किया, अपने पूरे आंदोलन में कहीं वो आरक्षण का जिक्र नहीं। तो उसके बाद फिर 1931 में पूना पैक्ट होता है, जिसमें उसकी जो वो कम्युनल अवार्ड है उसका ये होता है कि भाई कम्युनल अवार्ड नहीं होना, मतलब उसके बदले में आरक्षण दिया जाना चाहिए। कम्युनल अवार्ड के पहले हम आरक्षण की स्थिति पर जरा सा 5 मिनट बात करेंगे।
आरक्षण जब तय हुआ कि आरक्षण दिया जाए, तो ये हुआ कि किनको दिया जाए, जो वंचित हैं, जो, तो उसके साथ कितना घालमेल किया गया। जो तो देखिए कितना वो किया गया है, जरा समझिएगा। हम एससी कहते हैं ना, या ओबीसी कहते हैं, दरअसल एससी और ओबीसी दोनों एक है। कैसे? एससी को कहते हैं, उसका पूरा नाम है शेड्यूल ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज। जब यह तय हुआ कि आरक्षण होगा, तो यह हुआ किनको दिया जाए, तो एक सूची बनाई गई। उस सूची में कि ये कम्युनिटीज माइनॉरिटी में हैं, बैकवर्ड हैं, और बैकवर्ड कैसी बैकवर्ड? जो शैक्षिक रूप से बैकवर्ड हैं, जो सामाजिक रूप से बैकवर्ड हैं, जो छुआछूत की शिकार हैं, जो अन्य तरीके के जो है, जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास खेती नहीं है, इन सभी जो शिकार कम्युनिटीज हैं, उनको एक सूची उनकी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया शेड्यूल ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज। उसके बाद जो छूट गए, तो दूसरी सूची बनाई गई, जिसका नाम रखा गया अदर शेड्यूल ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज। बहुत चालाकी से गेम खेल के पहली सूची से बैकवर्ड शब्द हटा दिया गया और वो हो गई 80। दूसरी सूची से शेड्यूल शब्द हटा दिया गया और वो हो गई ओबीसी। जबकि दोनों, इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। अभी मैं जब आ रहा था, तो हमारे साथ यादव जी आ रहे थे, लेने गए थे। अब यादव जी महाराष्ट्र के हैं, अभी हमने इनसे इस बारे में चर्चा की। तो यादव जी महाराष्ट्र के हैं, और महाराष्ट्र में यादव ओपन कैटेगरी में है, और उत्तर प्रदेश में यादव, बिहार में यादव ओबीसी में। उत्तर प्रदेश में पासी वो एससी में है, और वहीं आप चले जाइए आसाम में, वहीं आप चले जाइए केरल में, तो पासी ओपन कैटेगरी में। इस तरह से घालमेल किया गया, स्टेट वाइज सूची बनाई गई। अगर यही सूची नेशनल लेवल पर बनाई गई होती, तो ये घालमेल न होता। तो ये सूची का खेल, और कुछ लोग दोनों में हैं, मतलब एससी में भी है, ओबीसी में भी है। तो इस तरह से आरक्षण को, क्योंकि आज तक आप देखिए कि आरक्षण पूरा नहीं हुआ। अगर आरक्षण इस ढंग से पूरा कर दिया जाता, तो 10 साल में उसके आगे की जरूरत नहीं पड़ती, और ना हम यहाँ डिस्कस कर रहे होते इंडियन सोसाइटी पर, क्योंकि तब भारत के संविधान की इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी को हम लमसम पा चुके हो। तो अब यहां जरूरत है कि जाति व्यवस्था को नए सिरे से वर्गीकृत किया जाए, और इसको ढंग से वो करके, चूंकि जानते हैं, और जातियां बनी कैसे, हम आपको दो उदाहरण देंगे। दो उदाहरण देंगे जातियों का, कि भारत में जातियां बनी कैसे। एक किताब है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अशोक के फूल। ये बीएचयू में एचओडी थे हिंदी विभाग के, और तमाम यूनिवर्सिटियों में भी इन्होंने काम किया। वो लिखते हैं कि भारत माता के बारे में वो लिखते हैं, क्या भारतवर्ष यह समुदाय जिसे थोड़ा बहुत बोलना आता है, इस देश के मूक और दलित जनता की जागृति को सहन करने लायक मानसिक बल और बौद्धिक साहस रखता है?
युग युगांतर में संचित पाप का प्रायश्चित करने लायक अनुताप हमारे चित्त में अब भी नहीं आ सका। ये अपर कास्ट को, ब्राह्मण समाज को वो संदेश दे रहे हैं। एक ब्राह्मण संदेश दे रहा, बुद्धिजीवी ब्राह्मण, हम आज भी काल्पनिक भारत माता की जय निनाद करते जा रहे हैं। भारत माता वस्तुतः क्या है, यह समझने की चेष्टा बहुत कम हो रही है। पूर्व और पश्चिम में जिस प्रकार की जागृत हो रही है, उसे देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत माता जिस दिन अपने कोटि कोटि दलित, हीन, निरन्न, जिनके पास अन्न नहीं है, निर्वस्त्र बालकों को लेकर जाग पड़ेगी, उस दिन की हालत कल्पना से बाहर होगी। उस दिन के लिए हमें अभी से तैयार रहना चाहिए। भारतवर्ष क्या है, हमें इस बात को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि भारतवर्ष उन करोड़ों दलितों और मूक जनता से अभिन्न है जिसे छूने से भी पाप का अनुभव किया जाता है। इनकी संख्या कम नहीं है। एक दूसरी का रेफरेंस है, कास्ट, एक किताब है, ऑब्जर्वेशन ऑफ आईसीएस ऑफिसर्स एंड अदर सिंस 1881। यहां जो सेंसस होता था तो एक आईसीएस अफसर सेंसस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता था, जो बाहर मतलब पूरे इंडिया में घूम के वो ऑब्जर्व करता था, और उन लोगों, उन सेंसस ऑफिसर्स ने जो ऑब्जर्व किया, उस एक साउथ इंडियन वो है डॉक्टर वी कन्नू पिल्लई, इन्होंने उसको जो है संग्रहित किया। अब उस सेंसस ऑफिसर ने का एक जो है वो देखिए कि जातियां कैसे, यहां कैसे वो हुआ। लोकल ट्रेडिशन इन अवर एंड ये प्लीज ये वाला बताइए, अवर एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस around the tales of Brahmins being manufactured out of low caste men by Raja, which day the Raja could not find the sufficient larger number of hereditary Brahmण to attend some sacrifice or feast। अब इसकी कहानी को हम हिंदी में आपको बताते हैं कि प्रतापगढ़ हमारे यहाँ है, तो वहां के राजा मानिकचंद थे। तो मानिकचंद ने क्या किया कि ब्राह्मणों को आमंत्रित किया भोज पर। तो ब्राह्मणों ने कहा कि उस समय यह था कि भाई भोज वो गैर ब्राह्मण के यहां करना, भले ही वो राजा है क्यों ना हो, नहीं वो करते। तो उन्होंने सोचा कि इनसे ऐसी शर्त रख दी जाए कि ये करा ही ना पाए। तो उन्होंने कहा कि 1.25 लाख ब्राह्मण आप इकट्ठा कर लीजिए, तब हम आपके यहां भोज करेंगे। तो 1.25 लाख ब्राह्मण आवे कहां से? भोज का दिन आ गया, ब्राह्मण आए, 1.25 लाख ब्राह्मण थे नहीं। तो राजा ने पूछा कि अब अच्छा, वो बिना खाए लौटना भी वो अपनी बेइज्जती समझते थे, और राजा को भी अपनी बेइज्जती कि हम खिला नहीं पाए। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण बनेगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि जनेऊ संस्कार होता है इस तरह से ब्राह्मण बन जाएगा। तो कहेंगे भाई फिर आप हमारी जनता को ब्राह्मण बना दीजिए और भोज हो जाए। उन्होंने जनता अपनी बुला ली और उसका जनेऊ संस्कार हो गया और भोज हो गया। उसके बाद अब ब्राह्मणों ने कहा कि इनका जनेऊ उतार दीजिए, फिर ये अपनी अपनी जात में लौट। तो उन लोगों ने जनेऊ उतारने से इनकार कर दिया। उस क्षेत्र में एक कहावत प्रचलित है, दुबे धुबैया तिबे कहार चौबे हरजोतना सुकुल चमार। मतलब कि इन जातियों एक कहावत है वहां की, इस तरह के जो है लोग जो कन्वर्ट हुए, तो इस तरह से जो कन्वर्ट हुए वो इस तरह के जो समाज बना, ऐसे समाज, ऐसी जाति व्यवस्था को फिर से वर्गीकृत करने की जरूरत है कि इस जाति व्यवस्था को हम कैसे ऐसे उसमें लाएं कि जिससे हम एक नए समाज की स्थापना कर पाए।
जात व्यवस्था को, नए समाज को स्थापित करने के लिए दो ही तरीके हैं। रोटी बेटी का संबंध। आज हम रोटी का तो संबंध कर पाए, लेकिन बेटी का संबंध अभी भी हमसे बहुत दूर है। ये सारी जातिगत समस्या, आर्थिक समस्या, शैक्षिक समस्या, सामाजिक समस्या, ये सारी समस्याएं हैं जिन सभी समस्याओं का हल डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उस कम्युनल अवार्ड में दिया है। हल क्या है? हल है जो उन्होंने साउथ बैरो कमेटी को प्रस्तुत किया था कि अगर भारत में ये हो तो भारतीय समाज एक अच्छा समाज होगा। नंबर 1, सेपरेट इलेक्टोरेट। नंबर 2, सेपरेट सेटलमेंट। नंबर 3, प्रोपोर्शनल शेयर। और नंबर 4, कंप्लीट फ्रीडम। सेपरेट इलेक्टोरेट उन लोगों के लिए था जो यहां के माइनॉरिटी के लोग थे, जो दलित थे, जो वंचित थे, कि वो अपना प्रतिनिधि स्वयं चुने। उनका प्रतिनिधि कोई गैर समाज का व्यक्ति न चुने, अपना प्रतिनिधि वो स्वयं चुने। उसके लिए था, व्यवस्था थी कि वो कैंडिडेट चुने। जैसे इंग्लैंड, अमेरिका में होता है ना, कि अमेरिका में क्या होता है कि वो जो है पहले कैंडिडेट का चुनाव होता है, तब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। उसी तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट में व्यवस्था थी कि वो पहले कैंडिडेट का चुनाव करें और कैंडिडेट चुन लेंगे, तब वो सब मिलके उस कैंडिडेट को एमएलए या एमपी चुनेगा। तो उससे होगा क्या कि वो जो कैंडिडेट का चुनाव होगा, वो कैंडिडेट जब एमपी एमएलए चुना जाएगा तो अपने उसके लिए काम करेगा। दूसरा था सेपरेट सेटलमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज ये इस देश में होता तो किसी तरह की कोई समस्या ना होती। वो सेपरेट सेटलमेंट क्या है? सेपरेट सेटलमेंट को उन्होंने चार भागों में बांटा। जो भारत की बौद्धिक संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, उसको उन्होंने जंगल मतलब जमीन, पहाड़ और समुद्र या नदियां, जमीनों को उन्होंने उपजाऊ और गैर उपजाऊ में बांटा। गैर उपजाऊ जमीन को उन्होंने कहा कि एक भूमि बैंक बनाया जाए। जो आज हम लोगों का करोड़ों करोड़ हम लोगों के यहां जमीन के मुकदमे, उन्होंने एक भूमि बैंक बनाने की बात की कि भूमि बैंक बनाया जाए। और भूमि बैंक में चूंकि 47 के बाद जब देश आजाद हुआ, तो जब आप जानते हैं कि जमीन किसकी होती है? राजा की होती है। राजा कौन था? अंग्रेज था। जब अंग्रेज राजा है तो जमीन अंग्रेज की। जब वो छोड़ रहा है, जब आजाद कर रहा है, तो जमीन किसकी होगी? जमीन किसी व्यक्ति विशेष की तो नहीं हो जाएगी तुरंत। तो उसके लिए उन्होंने उपाय दिया था कि एक भूमि बैंक बनाया जाए और सारी की सारी उस भूमि बैंक में क्रेडिट कर दिए जाए, और अनउपजाऊ जमीन को सरकार उपजाऊ बनाए। जो और तमाम वैज्ञानिक तरीके होते हैं उपजाऊ बनाने के, और जो खेतिहर जमीन है, उपजाऊ जमीन है, उनको लीज पर दे। जो व्यक्ति जितनी खेती करना चाहे वो आवेदन करे और वो उसको उतना अलॉटमेंट हो, जैसे हम बैंक से पैसा निकालते हैं, वो उसको उतना अलॉटमेंट हो 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, और जब वो समय बीते तो अपने आप जमीन चली जाए। और जो उसका लड़का करना चाहे वो फिर से आवेदन करे नए सिरे से, और नए सिरे से वो जमीन उसको, हम सब पेपर में पढ़े होंगे। और कुल 1% के पास 80%। अब आप सोचिए कि अगर 135 करोड़ जनता का 1% कितना हुआ? 1% अगर 90, 60, 80% के ऊपर कब्जा है तो 99% लोग कैसे जी रहे हैं? आज वो समस्या नहीं होती। तब हम पूर्ण आजादी की ओर बढ़ते। तब हम कह सकते थे कि ये समाज, तब तक हम आर्थिक विषमता को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम कोई समाज नहीं बना सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को
विराम देता हूं और आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। And research scholars for research and creative art. Now I request Assistant Professor Dr. Jadhav Yuva to felicitate by presenting a bouquet to Dr. Alka Gadkari. Thank you, sir. Some good things every day and forget some bad things every day. One of the philosophers rightly said, life is a way to move on certain events to reach at a specific destination. Now I kindly request Honorable D.D. Kurankar, the principal of our college, to give the presidential remark. इथे आलेला आहात म्हणून तुमच्या आणि त्यांच्यामध्ये जास्त वेळ न घेता वेळेचं भार ठेवून त्यांनी जो विषय प्रतिपादन केलेला आहे त्यावर आपण सर्व चर्चा करणार आहात. त्यासाठी आपल्या सर्व विद्वान मंडळी या ठिकाणी आपण आमंत्रित केलेलं आहे आणि विषय जो आहे त्या विषयाची संकल्पना त्यांनी या ठिकाणी मांडलेली आहे की भारतीय हा समाज आहे. त्यानंतर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की याला समाज म्हणायचं का. पालन करत असताना धर्माच्या चौकटीतून लोक बाहेर यायला तयार नाही. त्यामुळे 60-70 वर्ष ही घटना चालू आहे आणि आपापल्या धर्माप्रमाणे वागणूक बी चालू आहे. ही विसंगती फार मोठी या ठिकाणी आहे आणि म्हणून हा समाज ज्या अनेक देशामध्ये क्लास वार झाले, जो वर्ग दोन निर्माण होत नाही, दोन वर्ग निर्माण झाले नाही तर छोटा वर्ग कोणता आहे त्याला फॅसिलिटी देऊन एक वर्ग करण्याचे प्रयत्न तोपर्यंत यशस्वी होतील का नाही या सर्व गोष्टीचं या ठिकाणी उहापोह करण्यासाठी आपल्याला सादर आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. असे या ठिकाणी संपूर्णतः थँक्यू. Now I request Assistant Professor Dr. Mahajan Viji to felicitate by presenting a bouquet to Dr. Bharat Nimrod. Thank you, sir. But his blessings and wishes always with us. His guidance and valuable suggestions always boost our confidence and inspire us. I, on behalf of Shiv Chhatrapati Arts College, Pachur, must mention our deep sense of appreciation from historical perspectives to current scenario. I also show my appreciation to Mr. Jamdare Sir, Apurva Publication and his team. Warmly thanks to our principal, Sri D.D. Kurankar Sir, to lead this conference successfully. Special thanks to Aurangabad Municipal Corporation to avail this auditorium hall for conference. Extend to my thanks to all dignitaries on dais. Last but not least, thanks our researcher, scholar, professor came from various colleges. Academic audience from all walk of life. Extend to my thanks college students, staff, convener, technical and non-technical support. Your presence make this conference successful and fruitful. May hope the theme of conference inculcate new vision in your academic career. From the bottom of heart, thank you all of you once again. After the inauguration program, lunch available to the correct my sentences. After this inaugural function, language paper reading program is arranged in the second floor of this auditorium, and a social science and library reading paper program conduct in this hall. After the completion of first session, lunch is left side to this auditorium hall. Thank you.
स्वागत करण्यासंदर्भात आमच्या चव्हाण सर. बंद कर डॉक्टर National level conference, Dr. Shivaji Yadav sir, Dr. Vilas Mahajan sir, Dr. Jain sir, and all the teaching and non-teaching staff of this college. The chairperson of this session, my friend Dr. Bagal sir, the rapporteurs on the dais, Dr. Kokar, Dr. Alka Gadkari madam, Dr. Govardhan Auti, Dr. Navnath Shinde, Dr. Nimrod, and Dr. Mahajan sir. The academicians, fellow researchers, and all the dignitaries of the dais. At the very outset, I would like to say that the very theme of the seminar, Indian Society, Problems and Solutions, in the inaugural function, the keynote addresser, Dr. Sanjay Bhartiya from Raebareli, Uttar Pradesh, he has talked upon whether the society is in existence or not. If we are talking in favor of the society, that the existence of society is there, then how can we say that the existence of it? Indian society is a multilingual, multicolor, multi-religions, multi-religious, all type of people are habitating in India. There are n number of problems are created in society. Apart from that, we have to sort out these problems and which solutions are there. We have to discuss upon that. The outcome of the solutions we have to tell in brief. In the inaugural function, the souvenir of this seminar is published by honorable dignitaries on the dais. It is said that near about 160 papers are included in this souvenir. Dr. Dharmaraj Veer sir, who is the librarian of our Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, was the chief guest and inaugurator of this function. He appreciated this souvenir. In this souvenir, so many academicians and researchers have incorporated their articles, and through this dais, I announce that this dais is open for discussion. The list is already there. I appeal to all the researchers and the paper presenters, paper readers, that this session is open for discussion. Those who are interested to read and to discuss the theme and sub-theme of the seminar, please come forward and read their paper, present their paper, and also discuss and debate. This dais is open for all. With this, I conclude. Thank you. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ व
पाचोड यांच्या संयुक्त विद्यमानाने भाषीय एकदिवसीय चर्चासत्रासाठी मी आज माझा शोध निबंध या ठिकाणी सादर करत आहे. माझ्या शोध निबंधाचं नाव आहे 1990 नंतरचं ग्रामीण कादंबरी लेखन. कादंबरी या प्रकाराविषयी स्वतंत्रोत्तर काळात सर्वसाधारणपणे आपण 3 पर्व मानतो. 1950 ते 1970, 1970 ते 1990 व 1990 नंतर ते आजपर्यंत असे 3 टप्पे आपण अभ्यासाच्या सोयीने या कादंबरी वाङ्मय प्रकाराचे केलेले आहे. 1970 नंतर मात्र व्यवस्थेच्या बदलत्या स्तराप्रमाणे मराठी कादंबरी लेखनात नवे प्रवाह जोरकसपणे पुढे आले. 1990 नंतर खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण धोरणाच्या प्रवेशाने जगण्याचे सामर्थ्य बदलून गेले. 1970 ते 1990 पर्यंतचा काळ साहित्यातील विविध प्रवाहांचा म्हणजे सर्व स्तरातील लेखकानुभवांचा काळ समजला जातो. यामध्ये गोतावळा आनंद यादव, पाचोळा रारम बोराडे, धग उद्धव शेळके, विषवृक्षांच्या मुळ्या वासुदेव मुलाटे, सूड बाबुराव बागुल, पोखरण केशव मेश्राम, एक एक पान गळावया गौरी देशपांडे, वस्ती महादेव मोरे, बनगरवाडी व्यंकटेश माडगुळकर, गारंबीचा बापू श्रीनाथ पेंडसे. या कादंबऱ्यावर नजर फिरवल्यावर ही बाब सहज लक्षात येते. 1960 नंतर ग्रामीण लेखाची एक नवी पिढी उदयास आली. या पिढीमध्ये उद्धव शेळके, रारम बोराडे, आनंद यादव, नाधव मानव, मधु मंगेश कर्णे इत्यादी लेखकांनी ग्रामीण जीवन शब्दांकित केले. बोराडे, यादव, मोरे यांनी ग्रामीण बोली भाषेचा अवलंब करून तिचा आविष्कार क्षमता वाढवली. पाचोळा, गोतावळा व रयत मधून स्वातंत्र्योत्तर काळातील बदलत्या ग्रामीण जीवनाचे चित्रण आपणास पाहावयास मिळते. 1990 नंतरच्या कादंबरीचे सामर्थ्य आणि मर्यादा. 1990 नंतर भारतीय ग्रामीण जीवनात मोठी स्थित्यंतरे घडून आली. ग्रामीण जीवन ढवळून निघाले. ग्लोबल व्हिलेज या गोंडस संकल्पनेच्या नावाखाली खेडी कोलमडून पडायला लागली. आधुनिकीकरणामुळे खेड्यांचा चेहरा बदलला. गाव, रस्ता, वीज, शाळा, महाविद्यालय, आरोग्य केंद्र, वर्तमानपत्रे, फोन सुविधा, टीव्ही, मोबाईल यांचे आगमन झाले आणि नव्या बदलाचे वारे वाहू लागले. 1990 नंतर ग्रामीण विकासाच्या नावाखाली अतिशय ग्रामीण पद्धतीने स्थित्यंतरे होऊ लागली. राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक स्वरूपाचे बदल जाणवू लागले. या बदलाचा इतका विपरीत परिणाम झाला की गावचे गाव पण हरवून गेले. ग्रामीण माणसाच्या जीवनशैलीत बदल झाला. या बदलत्या ग्रामीण जीवनाचे चित्रण 1990 नंतरच्या ग्रामीण कादंबरीत आपणास पाहावयास मिळते. ग्रामीण समाज जीवनाचे प्रतिबिंब विश्वास पाटील यांच्या झाडाझडतीमध्ये पडलेले दिसते. या कादंबरीत लेखकाने व्यक्तिनिष्ठ चित्रणापेक्षा सामूहिक चित्रणावर जास्त भर दिलेला दिसतो. म्हणून झाडाझडती ही कादंबरी ग्रामीण जीवनाचा एक दस्तऐवज ठरते. पूर्वी ग्रामीण कादंबरीत पाटील, देशमुख, कुलकर्णी किंवा सरकार यांचे नायकत्व आपणास पाहावयास मिळत होते. परंतु 1990 नंतरच्या कादंबरीत खेड्यातील सर्वसामान्य माणूस त्याचे जगणे अधोरेखित होऊ लागले. परिणामी ग्रामीण कादंबरीचा चेहराच बदलला. ग्राम पातळीवर शिक्षण आणि सहकार या 2 घटकांमुळे बदल झाला. सहकारातूनच गाव पातळीवर नवी शोषणाची व्यवस्था निर्माण झाली. खेड्यातील तरुण पदव्युत्तर झाले पण नोकरी नाही म्हणून गावात भटकू लागले. त्यातच नोकरीसाठी डोनेशन, कंत्राटी पद्धत, कायम विनामान धोरण, तासिका तत्वावरील नोकरी यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांचा शिक्षणावरील विश्वास हळूहळू कमी होत चालला. वैयक्तिक स्वार्थ इतका बळावला की देश सेवेऐवजी स्वतःची कुंबडी कशी भरता येईल याकडे स्वार्थी राजकारणी झुकले. आपल्या 7 पिढ्या कशा बसून खातील इतकी संपत्ती त्यांनी कमवून ठेवायला सुरुवात केली. स्वार्थासाठी त्यांनी संबंध देशात धिंगाणा घालायला सुरुवात केली. याचे चित्रण राजन गवस यांनी धिंगाणा 1992 या कादंबरीमधून यथार्थपणे आपल्या समतोलाचं या कादंबरीतील नायक कादंबरीच्या शेवटी म्हणतो, बापाचे दिवस पोराला येऊ नयेत असे वाटत असेल तर शिरूला या काळात ऋतू देऊ नको असा सल्ला ग्रामीण युवकांना देतो. शेती करणे म्हणजे गाळात रुतणे असे भीषण वास्तव कादंबरीतून समोर येते. शेषराव मोहिते यांच्या धूळ पेरणी हे ग्रामीण वास्तव यातून प्रकट होते.
शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचे चित्रण श्रीना पेंडसे यांच्या कामेरी या कादंबरीतून प्रामाणिकपणे येते. कादंबरीतील सचिव म्हणतो, माझ्या अध्यक्षासोबत बोलणं झालेलं आहे. तुम्हाला पूर्ण ग्रँट असले तरी 6 महिने तुम्हाला अर्ध्या पगारावर काम करावे लागेल आणि जी रक्कम जमा होईल त्या रकमेतून आपण महाविद्यालयाची इमारत बांधू. प्रस्तुत संदर्भ शिक्षणाची भीषण अवस्था प्रकट करतो. शिक्षण घेण्यापेक्षा ग्रामीण तरुण वाईट धंदे करण्यास तयार होत आहे, म्हणून नोकरीच्या शोधात पडण्याऐवजी दिनून दारूचा व्यवसाय करतो. तर कामेरू या श्रीना पेंडसे यांच्या कादंबरीचं नाईक अफूक व चरसचा व्यवसाय करतो. समकालीन ग्रामीण कादंबऱ्यातून केवळ ग्रामीण जीवनातील दैन्य, दारिद्र्य, अज्ञान, परंपरा, प्रियता इत्यादीसह वर्तमानातील अर्थपूर्ण चित्रण करणारा रौंदाळा, कृष्णात खोत, छळ, अक्का पुष्पा देशमुख, बळ सतीश जाधव, बारदाना प्रकाश देशपांडे, दारिद्र्य नारायण, वन इंगळे, दुसरी लढाई प्रमोद सबनीस, सातपुड्याची कला विजय इंगळे, बळीराजा श्याम झाडे, गाव पंढरीच्या वाटेवर अप्पासाहेब खोत, जलपर्वत रेखा बैजर, टकराव अभिजित हमसेटे, लगीन संजीव गिरासे, आरंबळ राघव चौरे, उद्रेक विजय वळसे, पाडा कुंदा अशोक कौतिक कोळी या सर्व कादंबऱ्या दखलपात्र आहेत. ग्रामीण जीवनातील नवे प्रश्न, नव्या समस्या, नवी गुंतागुंत, वास्तव, शोषण, विकृतीचे विदारक सत्य याचे रेखाटन हे ग्रामीण कादंबऱ्या संख्यात्मक व गुणात्मक चित्रणावर जास्त भर दिलेला आहे. 1990 पर्यंतच्या ग्रामीण जीवनाचे मानदंड ठरलेल्या कादंबऱ्या, उदाहरणार्थ बनगरवाडी, टारफुला, धग, पाचोळा, गोतावळा, ग्रामीण जीवनातील इत्यादी कादंबऱ्या या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. प्रस्तुत शोध निबंधाचा समारोप. प्रस्तुत शोध निबंधामध्ये 1990 नंतरच्या ग्रामीण कादंबरीचा आढावा घेण्याचा मी या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे. 90-उत्तर ग्रामीण कादंबरी ही समस्या प्रधान कादंबरी आहे. ग्रामीण स्त्री पुरुष तरुण एकूणच सर्वांनाच अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते याचा अचूक वेध 90 नंतरची कादंबरी घेते. ग्रामीण संस्कृतीमध्ये होणारी पडझड, चौबाजूने होणारा ग्रामीण माणसांचा कोंडवारा यावर ही ग्रामीण कादंबरी प्रकाश टाकते. त्याचबरोबर बाजारभावाचा प्रश्न, विजेचा प्रश्न, वाढती महागाई, नव्याने उभे राहिलेले एसी झेडचे संकट हे सर्व प्रश्न ही कादंबरी घेते. बदलते खेडे, बदलते मूल्य, ढासळलेली नैतिकता, राजकारणाला आलेले गरीबचे स्वरूप या सर्वांचा होणारी ग्रामीण माणसांची घुसमट 1990 नंतरची कादंबरी अगदी सशक्तपणे मांडते. केवळ समस्याच मांडत नाही तर त्यावर उपायही सुचवते. 1990 नंतर लेखन करणाऱ्या नव्या उमेदीच्या ग्रामीण लेखकांनी वैशिष्ट्यपूर्ण ग्रामीण कादंबरी लेखन करून समाजालाच नव्हे तर समाज व्यवस्थेला आत्मभान प्राप्त करून दिले आहे. आत्मशोध घेण्यास प्रवृत्त केले आहे. नागर समाज व्यवस्थेपेक्षा ग्रामीण स्तर समाज व्यवस्थेचे जीवनानुभव वेगळे आहेत हे या कादंबरीने दाखवून दिले आहे. 1990 नंतर जागतिकीकरण, उदारीकरण व खासगीकरणामुळे ग्रामीण समाज व्यवस्था खिळखिळी कशी झाली, यांत्रिकीकरणामुळे ग्रामीण माणूस बेरोजगार कसा झाला, पारंपरिक व्यवसाय बुडाले, त्यांची जगण्याची साधने नष्ट झाली, पारंपरिक शेती व्यवसाय सोडून आधुनिक शेतीस प्रारंभ झाला, धरणामुळे उठणारी गावे त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न हे सर्व विषय या ग्रामीण कादंबरीने अगदी यशस्वीपणे हाताळलेले आहेत. धन्यवाद. धन्यवाद सर. सरांनी ग्रामीण जीवन व कृषी जीवन यावर प्रकाश टाकलेला आहे. ग्रामीण जीवनामध्ये शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी या वर्गाची आज कशी ससे होलपट होत आहे यावर त्यांनी आपल्या या लेखाच्या माध्यमातून प्रकाश टाकलेला आहे. यानंतर मी प्राध्यापक डॉक्टर मुंडे रामकिशन हरिदास यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या निबंध वाचनात शोध निबंधाचं सादरीकरण करावं. आजच्या या सत्राचे अध्यक्ष पागल सर, त्याचप्रमाणे डॉक्टर संतोष चौथाईवाले, डॉक्टर नवनाथ शिंदे सर, आवटी सर, गडकरी मॅडम, उपस्थित मान्यवर, माझ्या शोध निबंधाचा विषय आहे शेतकरी आत्महत्येची कारणे व उपाय.
एक समाजशास्त्रीय अभ्यास या अनुषंगाने मी या विषयाची मांडणी करणार आहे की मित्रांनो, भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. आजही या देशातील 70% जनता ही कृषीवर अवलंबून आहे. या कृषी क्षेत्राचा अभ्यास करण्यासाठी भारत सरकारने एक आयोग नेमलेला होता. त्या आयोगाचं नाव होतं स्वामीनाथन आयोग. या स्वामीनाथन आयोगाने शेतकऱ्यांची व्याख्या केलेली आहे की शेतकरी या संकल्पनेमध्ये कोणकोणती घटक येऊ शकतात. शेतीशी संबंधित असणारे घटक, तर त्यामध्ये असं नमूद केलेलं आहे की शेतीवर उपजीविका करणारे सर्व स्त्रिया व पुरुष, भूमिहीन शेतमजूर, वाटेकरी, भाडेपट्ट्याने जमीन करणारे शेतकरी, छोटे सीमांत, अर्ध सीमांत, मध्यम लागवडदार शेतकरी, मोठे जमीनधारक, मासेमारी, पशुपालन, कुक्कुटपालन करणारे, जनावरे चालणारे, वृक्षारोपण करणारे, मधुमक्षिका पाळणारे, रेशीम व उद्योग करणारे, दयाची स्थलांतरित शेवण शेती करणारे, लाकूड सोडून इतर वन्यपेजे गोळा करणारे, वापरणारे, पीक व पशु प्रजनन तथा मत्स्यक्षेत्र वनशेतीवर उपजीविका करणारे, शेती व गृहशास्त्राचे पदवीधर या सर्वांचा शेतकरी या संकल्पनेमध्ये किंवा व्याख्येमध्ये त्यांनी समाविष्ट केलेला आहे. आणि माझा जो काही दृष्टिकोन आहे तो सोशिओलॉजिकल एक्सेप्ट यांनी मी या विषयाची मांडणी करणार आहे. किसान मी तर सांगू इच्छितो की समाजशास्त्रामध्ये आत्महत्या आत्महत्येच्या अनुषंगाने मांडणी करत असताना एक पाश्चात्य समाजशास्त्रज्ञ आहेत, त्यांचं नाव आहे एमिल डर्किम. यांनी त्यांच्या द सुसाईड या ग्रंथामध्ये अशी शेतकरी आत्महत्येची अशी मांडणी केलेली आहे की त्यांनी 3 प्रकारच्या शेतकरी आत्महत्याचे प्रकार सांगितलेले आहेत. एक आहे आत्महत्या आत्महत्या, दुसरी परार्थवादी आत्महत्या आणि तिसरी प्रमाणशून्य आत्महत्या. आत्मकेंद्रित आत्महत्यामध्ये ते असं म्हणतात की विकोष्टिक आत्महत्या, जेव्हा व्यक्तीसमोर एखादी विशिष्ट अशी परिस्थिती निर्माण होते आणि या परिस्थितीचा त्याच्या सहमत जेव्हा त्याला ठेस पोहोचते किंवा तो आत्मकेंद्रित होतो किंवा त्याच्या युगाला जेव्हा ठेस पोहोचते तेव्हा व्यक्ती हा आत्महत्या करत असतो. त्यानंतर परार्थवादी आत्महत्यामध्ये जे काही समाजाच्या भल्यासाठी समाजाचे हित समोर ठेवून जे व्यक्ती आत्महत्या करतात त्याला परार्थवादी आत्महत्या असं म्हणतात. आणि प्रमाणशून्य आत्महत्येमध्ये जेव्हा समाजातील अनिश्चित परिस्थिती निर्माण होते, जेव्हा आर्थिक अस्थैर्य निर्माण होतं, या परिस्थितीमध्ये ज्या व्यक्ती आत्महत्या करतात ते प्रमाणशून्य आत्महत्येमध्ये असं वर्गीकरण एमिल डर्किम यांनी केलेलं आहे. तर शेतकरी आत्महत्यांचं जी काही प्रकार एमिल डर्किमच्या मतानुसार असं मला वाटतं की आत्मकेंद्रित आत्महत्यामध्ये शेतकरी आत्महत्या भारतात येऊ शकतात. या संशोधनाची उद्दिष्ट मी ठरलेली होती. पहिलं उद्दिष्ट आहे शेतकरी आत्महत्ये मागील कारणांचा अभ्यास करणे. दुसरं आहे शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे. यासाठी मी संशोधन पद्धती वापरलेली आहे. द्वितीय पथ्यसंकलन पद्धतीचा वापर केलेला आहे. त्यामध्ये संदर्भ ग्रंथ, शासकीय अहवाल, शोध प्रबंध, वर्तमानपत्रे या अनुषंगाने मी पथ्य संकलित केलेले आहे. तरी या संदर्भामध्ये मी आकडेवारी देऊ इच्छितो की शेतकरी आत्महत्या ही एक वैश्विक प्रघटना असून भारतामध्ये 2015 साली 12,206 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. त्यामध्ये 8,007 शेतकरी आहेत आणि 4,595 शेतमजूर आहेत. त्यानंतर 2016च्या आकडेवारी असं सांगते की 11,370 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. त्यामध्ये 6,351 शेतकरी आहेत तर 5,019 शेतमजूर आहेत. जर राज्यानुसार त्याचं वर्गीकरण करायचं असेल तर सर्वात जास्त हे महाराष्ट्रामध्ये आत्महत्या झालेल्या आहेत. 2016 साली 2,550 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. म्हणजे भारतीय समाज व्यवस्थेमध्ये ही एक प्रामुख्याने समस्या आहे, जी सोशल प्रॉब्लेम आहे. आणि या सोशल प्रॉब्लेमला आपण कशाप्रकारे फेस करू शकतो किंवा त्याची अनेक प्रकारची कारणं आहेत. त्यामध्ये कर्जबाजारीपणा हा आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे की शेतकरी कर्जात कसा अडकतो आणि तो कर्जामध्ये बळी पडून
वाढीव जो तो व्याजदर आहे तो पण ह्या शेतकरी आत्महत्येसाठी प्रमुख कारण आहे. राजू शेट्टींनी लोकसत्तामध्ये एक असा लिहिलेला होता की जेव्हा नाबार्डकडून पीक कर्ज जेव्हा वितरित केलं जातं तेव्हा त्या व्याजाचा दर फक्त 3% असतो. त्यानंतर ते राज्य सहकारी बँक असतील किंवा जिल्हा मध्यवर्ती बँक असेल किंवा इतर बँक आहेत यामधला तो व्याजाचा वाढीव दर वाढत जातो आणि वाढीव दर हा किमान 11% पर्यंत जातो आणि त्यानंतर बँका त्यांची काही अनुमत रक्कम कापून घेतात आणि हा व्याजाचा दर जास्त प्रमाणात वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना 11% पर्यंत व्याजाचा दर जात असतो. म्हणून हे पण एक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसाठी प्रामुख्याने कारण आहे. आणि अशा प्रकारची जी व्यवस्था आहे ती व्यवस्था सुरळीत झाली पाहिजे. त्यानंतर महसूलची अनियमितता म्हणजे आज आपल्याकडे दुष्काळ आहे, एकच पीक आपल्या महाराष्ट्रामध्ये निघालेलं आहे आणि तेही म्हणजे जेवढा खर्च केलेला आहे तेवढंही त्या शेतकऱ्यांना उत्पादन निघालेलं नाही. म्हणजे कर्जाचा म्हणजे उत्पादन खर्च जास्त होत आहे आणि उत्पादन कमी निघत आहे. यामुळे ही जी काही असंतुलनाची परिस्थिती निर्माण होत आहे ती पण एक शेतकरी आत्महत्येसाठी कारणीभूत ठरत आहे. त्यानंतर भारत सरकारने 1991ला जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरणाचं धोरण स्वीकारलं आणि या धोरणानं समाजामध्ये काही सकारात्मक परिवर्तनही झालेले दिसून येतात आणि त्याचप्रमाणे नकारात्मक परिवर्तनही झालेले दिसून येत आहे. म्हणजे जागतिकीकरण नाकारावं असेल तर माझा मुद्दा अपेक्षित नाहीये, पण नकारात्मक दृष्टिकोनातून असं ठरवतं की आमच्या शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल जो आहे तो जागतिक अर्थव्यवस्थेनुसार त्याची मालाची किंमत ठरवली जाते. म्हणजे इथे जो सोयाबीनचा दर हा आमच्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेनुसार ठरायला पाहिजे, पण तिकडं अमेरिकेचं सोयाबीन पीक आलं नाही तर आमच्या शेतकऱ्यांवर इकडं त्याचा इफेक्ट होत आहे. म्हणजे तिकडं जर आंबा खाली गेला, आंब्याचे भाव खाली आले तर आमच्या इकडच्या आंब्याचे पण भाव खाली येतात. म्हणजे त्या परिस्थितीच्या भौगोलिकनुसार ते भाव ठरायला पाहिजे, पण तशा होताना आपल्याला दिसून येत नाही. कारण की आपण जागतिकीकरणाचा स्वीकार केल्यामुळे ते आपल्याला करणं भाग आहे. त्यानंतर पर्यावरण प्रदूषण हा एक शेतकऱ्यांसाठी आत्महत्येचा एक प्रमुख कारण ठरत आहे. कारण की आज औद्योगिकरण असेल त्यानंतर इतर जे काही उद्योगधंदे असतील ते वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक महासत्ता हे प्रयत्न करत आहे. कारण की औद्योगिकरण हे अर्थव्यवस्थेला पूरक आहे आणि अर्थव्यवस्था जितकी पूरक होईल तितक्या प्रमाणामध्ये तो देश हा महासत्ता होण्याकडे मार्गक्रमण करत आहे आणि तो किती प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड विसर्जन करणार, किती प्रमाणात हे होणार ह्याचे नियमावली ठरवून दिलेली असताना सुद्धा काही देश त्याचं अतिरिक्त प्रमाणात त्याचं विसर्जन करत आहे. म्हणजे अमेरिकेत जर पर्यावरण प्रदूषण झालं तर आपल्याला तिथं सीमेवर आपल्याला बांध टाकता येणार नाही की तिकडं पर्यावरण प्रदूषण हे आमच्या भारतामध्ये येऊ नका. म्हणजे चीनने केलेलं पर्यावरण प्रदूषण हे भारतासाठी हानिकारक आहे. म्हणजे आपल्याकडे आज आंब्याचं तोर आपल्याला खूप प्रमाणात दिसत आहे, पण इकडे जर हवामान जर बदललं, आमच्याकडे गारपीट झाली तर आमचे आंबे सगळे गळून जातात, म्हणजे आंबे येतच नाही. म्हणजे शेतकऱ्यांचा ह्याच्यामध्ये काय दोष आहे? म्हणजे मला इथे सांगायचं असं आहे की पर्यावरण प्रदूषणाचाही परिणाम आमच्या शेतकऱ्यांवर होत आहे. त्यामुळे कुटुंबाची ही त्या व्यक्तीवर असते, म्हणून त्यातून जे काही तणाव निर्माण होतात तोही महत्त्वपूर्ण कारण आहे. बेरोजगारी पद्धतीचा ऱ्हास झालेला आहे. पूर्वी पैसा शेतकऱ्याला कोणत्याही गरजेसाठी लागायचं नाही, पण आज नक्की पैशामध्ये कोणतेही काम करून घ्यावं लागत आहे. म्हणून पैशाची चलबिचल भागते आणि मध्यम वर्गाचा जो काही चंद्रवाद आहे तो शेतकरी उघड्या डोळ्याने बघतोय. म्हणजे तुम्ही प्रेझेंटेशन करा आणि 5-7 मिनिटांमध्ये आपण सगळे तज्ञ लोक बसलेलो आहोत. प्रत्येक जण ज्या डायसवर बसलेला आहे तो तज्ञ आहे, त्याच्यासोबत इंटरॅक्शन झालं पाहिजे. तर त्या अर्थाने खऱ्या अर्थाने त्याला पेपर रिडिंग हे म्हटलं जाईल, जेणेकरून टू वे कम्युनिकेशन घडलं पाहिजे. बोले और इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ. पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको बोल करूँगा क्योंकि तजुर्बा लंबा है इसका और मंच पर मुझे पूरे लोग जानते हैं, उनमें से 1-2 को लोगों को समझाया है. तो ये मेरी जिम्मेदारी है. ये स्त्री विमर्श और ये मीडिया जो है संक्षिप्त में, जैसे भरत सर ने कहा कि सर 15 मिनट, तो गारंटी 15 मिनट से एक सेकंड आगे नहीं जाओ. ओके.
मेरी समझ में जितना स्त्री विमर्श आता है आजकल इस विषय के ऊपर बहस बहुत होती है, चर्चा बहुत होती है, जितनी भी संगोष्ठी होती है उसमें 3 विषय कॉमन होते हैं। कंटेम्प्रेरी विषय है, ये हमेशा चर्चा में रहा है। और आपका जो कॉन्फ्रेंस का विषय है इंडियन सोसाइटी प्रॉब्लम्स एंड उसके सॉल्यूशन जो है वो भी कंटेम्प्रेरी विषय है। इंडियन सोसाइटी में हमेशा प्रॉब्लम रहे हैं और सॉल्यूशन हमेशा ढूंढते जाएंगे और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो सॉल्यूशन मिल जाए। सुबह के सत्र में बड़ी अच्छी बात हुई थी, जब बाहर से वो सर आए थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, संजय भारतीय सर, उन्होंने शुरुआत में एक बात अच्छी कही थी। उन्होंने शुरुआत की थी कि क्या हम एक न्यायपूर्ण समाज है, क्या हम एक न्यायपूर्ण देश है और क्या हम एक न्यायपूर्ण सोसाइटी है। और उसमें उन्होंने एक रेफरेंस दिया था, तो उन व्यक्ति का नाम भी बताऊं, अर्नेस्ट ट्रेनन नाम की वो व्यक्ति है जिनकी एक डेफिनेशन बताई जाती है। तो बाबा साहब ने उसको कोट किया था, सरदे के सुबह उसको कोट किया था। उन्होंने कहा शेयर सॉरो और शेयर ड्रीम, जिस समाज में समान दुख होता है, समान सुख होता है और समान सपने होते हैं, वो एक न्यायपूर्ण समाज होता है। और आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में आज भी हमारी सुख एक समान नहीं है। मतलब कोई ओबीसी समाज दुखी है तो बाकी दूसरा समाज उसके साथ में खड़ा है या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। कोई एससी समाज परेशान है तो बाकी उस आंदोलन में आती या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। वही स्थिति महिलाओं के संदर्भ में भी है, स्त्री विमर्श के संदर्भ में भी है। तो आप लोग जानते हैं कि स्त्री विमर्श एक ऐसी संकल्पना है जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर चल पड़ी थी। क्या उनको घर में, परिवार में, राजनीति में, समाज में उनको हक मिलते हैं या नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हमेशा होता रहा है, आज भी हो रहा है। एक कल्पना जो है जेंडर के साथ जुड़ी हुई कि हम महिला किसे कहते हैं, तो इसमें बड़ा एक अच्छा सा उदाहरण दिया जाता है। सिमोन द बोअर ने एक बुक लिखी थी, आप लोग कैटेगरी है, सब डिस्प्यूट की जानते हैं। उस किताब का नाम था सेकंड सेक्स। और सेकंड सेक्स में वो एक उदाहरण देती है कि महिला क्या है और पुरुष क्या है। मतलब स्त्री वो है कि जो जल्दी से रो पड़ती है, स्त्री वो है वो सहनशील होती है, स्त्री वो है जो जल्दी से जल्दी बात को मान लेती है, या स्त्री अपने स्वभाव में कोमलतम होती है, वो स्त्री है। और पुरुष वो है जो बहुत एग्रेसिव होता है, गुस्से वाला होता है, जल्दी से जल्दी एक्शन लेता है, वो पुरुष है। ये गुणधर्म बताए जाते हैं। तो वो एक सीधा सवाल पूछती है कि ये गुण किसने बताया, आपको किसने कहा कि स्त्री जल्दी रोती है, स्त्री सहनशील होती है और स्त्री ही सब कुछ एक तरीके से अपने आप को पीछे लेकर पुरुष के पीछे चलने वाली है। तो इसमें उन्होंने एक बड़ी वही बात कही थी। वो बात वो थी कि स्त्री को स्त्री प्रकृति ने नहीं बनाया, प्रकृति यानी नेचर, स्त्री को स्त्री बनाया हमारी संस्कृति ने। और हमारी संस्कृति ने बताया कि स्त्री की ये गुणधर्म होते हैं, स्त्री ऐसी होती है, स्त्री वैसी होती है। और स्त्रियों ने मान लिया कि हम ऐसे ही हैं, हम जल्दी रोते हैं, हम पुरुषों के पीछे खड़े होते हैं, हमको हमेशा सहारा चाहिए, फिर वो नहीं तो हमारा क्या होगा। ये सवाल तब से लेकर अब तक चालू है। अब आधुनिक दौर में आते आते हमने इसे अलग तरीके से डिफाइन करना शुरू कर दिया। मतलब ये सिमोन द बोअर से शुरू होकर फिर एमिली ब्रॉन्टी और उसके बाद में अगर आज के हम हिंदी और अंग्रेजी के लेखकों के साथ जोड़कर देखेंगे तो क्या इस थीम में कोई बदलाव हुआ है। वो बदलाव मुझे देखना है मीडिया के थ्रू कि मीडिया में स्त्री की इमेज, स्त्री की वो जो छवि हमको दिखाई जा रही है वो क्या है। वो बताने से पहले मैं उस बात को आपके सामने रख दूं कि ये मीडिया भी क्या कॉन्सेप्ट है। आजकल मीडिया हमारी आँख, कान, नाक, आँख सब कुछ है। हम जो सोचते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, वो लगभग सभी कहीं सोर्स से आ रहा है और वो सोर्स है मीडिया। और ये सच्चाई है, उसने हमारे दिमाग का एक तरीके से पूरा कब्जा कर लिया है। हमारे बच्चों का, हमारे समाज का, सोसाइटी का हर एक हिस्सा जो है उसके थ्रू गाइडेंस है। मार्शल मैकलुहान इस फील्ड का बहुत बड़ा विद्वान है। वो एक बात बड़ी महम कहता है, आप लोग ध्यान से सुनना, कि मैसेज जो है ना वो किस सोच से आ रहा है, वो इटसेल्फ मैसेज है। पहले क्या होता है कि माध्यम जो होता है वो पहुंचाने का काम करता था, मीडिया जो होता है केवल माध्यम होता था। आज के दौर में मीडिया खुद मैसेज हो गया है, संदेश हो गया है, वो अपने आप में एक कॉन्टेक्स्ट है। और हमको ये बात समझनी चाहिए कि मीडिया के थ्रू जो चीजें आती हैं वो पहुंचाई जाती है किसी चैनल की एक बनी बनाई थीम के तहत। तो मीडिया को हम बने बनाए में एक तरीके से, सर आप लोग सब मंच पर है, भाषण सुनते होंगे, एक शब्द हमेशा आता है, मीडिया हमारी फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का। इज इट करेक्ट? सही है ना? हमारी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है मीडिया को, लेकिन ये बहुत फॉल्स स्टेटमेंट है।
मीडिया का कोई ऐसा संवैधानिक अधिकार नहीं है, कोई ऐसी लीगलाइज स्टेटमेंट नहीं है, ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं दर्ज है कि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है। 3 स्तंभ तो हमको पता है, हमको संसद पता है, गवर्नमेंट पता है और हमको जुडिशरी न्याय व्यवस्था पता है। ये 3 चीजें जो है हमारे 3 पिलर है डेमोक्रेसी के। मीडिया अपने आप में सेल्फ प्रोमोटेड चौथा स्तंभ हो गया क्योंकि उसकी जरूरत थी। और वो एक तरीके से क्या करता है, वो बायस एक तरीके से छिपा हुआ मैंडेट क्रिएट करता है। मत जैसे कोई बात आ रही है किसी के भी फेवर में तो समझ लो उसके पीछे पूरा देश खड़ा है, पूरी जनता खड़ी है, ऐसा मीडिया की जरा प्रोपेगेंडा किया जाता है जो कि बहुत झूठी बात है। मीडिया अपना रोल गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और फिर वही मीडिया हमको जो दुखा रहा है हम उसे मानते हैं। इसी मीडिया ने हमारी स्त्री की छवि को इतना खराब कर दिया है कि महिलाओं को लगने लगा है कि पुरुषों के साथ कंपटीशन करना मतलब वह चीजें करना जो पुरुष करते हैं। क्या वो सही, मतलब मान लीजिए कंपटीशन में स्त्री स्वावलंबन और स्वातंत्र्य ही दिखाना है तो चलो फिर स्त्रियों को बियर पीते दिखाते हैं, सिगरेट पीते दिखाते हैं, गलियों में लड़ते झगड़ते दिखाते हैं। ये सब कुछ करने से क्या स्त्री स्वावलंबन और आज़ादी मिल जाएगी? हम चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। और इसी संदर्भ में वर्जीनिया वुल्फ ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। उनकी एक किताब है मेरा अपना एक कमरा, उसमें एक बात कहती है कि स्त्रियों को वो चीज़ें नहीं चाहिए जो पुरुषों की जैसी हो, स्त्रियों को वो चीजें चाहिए जो स्त्रियों के लिए जरूरी हो। और वो उसमें कहती है कि उसे अपनी सोचने की आज़ादी चाहिए, अपने निर्णय लेने की आज़ादी चाहिए, उसके लिए कम से कम अपना एक खुद का एक कमरा चाहिए। बहुत छोटी बात कहती है लेकिन बड़ी मुहिम कहती है। जो अंग्रेजी लिटरेचर के हैं वो जानते हैं इस बात को। तो हमको उस तरफ जाना पड़ेगा कि जो स्त्री आंदोलन वहाँ से शुरू हुआ था, मिडल में वो यहाँ तक आया और आज के दौर में वो दिशाओं में भटक गया। अंग्रेजी वाले उसे रेडिकल कहते हैं और वो जो रेडिकल फेमिनिज्म है वो एक अलग दिशा है। हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो कितना लायक है, क्योंकि हर एक समाज का स्ट्रक्चर का अपना एक ढांचा होता है। इंडियन फेमिनिज्म जो है वो वेस्टर्न फेमिनिज्म से बिल्कुल अलग होगा क्योंकि हमारी संस्कृति अलग है, कल्चर अलग है। तो हमें अपने कॉन्टेक्स्ट में इस इंडियन फेमिनिज्म को समझना होगा, मीडिया द्वारा स्त्री को दिखाई जा रही उस छवि को समझना होगा और हमें जो दिशाहीन किया जा रहा है उसको भी समझना होगा। इसलिए इस विषय के संदर्भ में हमारी सोसाइटी में ये भी एक प्रॉब्लम है। हम लिटरेचर वाले उस तरीके से उसे एड्रेस करते हैं, आप भी उसके ऊपर जरूर चिंतन कीजिए। संशोधित विद्यार्थी आत्ताच आमचे मंडळ सर बोलून गेले त्याच पद्धतीने माझ्याकडे सुद्धा पेपर नाही, पण आता मला जे आठवणार आहे पेपरमधलं ते मी आपल्यासमोर ठेवणार आहे। माझा पेपर जो आहे भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये औद्योगिक क्षेत्राची योगदान, आणि आपल्याला माहिती आहे की भारतीय अर्थव्यवस्था ही 3 क्षेत्रावर चालते। म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जो विकास आहे हा 3 क्षेत्राच्या माध्यमातून होतो। कृषी क्षेत्र आहे, औद्योगिक क्षेत्र आहे आणि सर्व्हिस क्षेत्र। आता पूर्वी काय होतं तर या 3 क्षेत्रामध्ये सर्वात जास्त हिस्सा हा कृषी क्षेत्राचा होता। आज उलट झालं, आज सर्वात जास्त जो हिस्सा आहे तर तो आहे सेवा क्षेत्राचा। आता पूर्वी जितका जवळपास कृषी क्षेत्राचा हिस्सा होता तितकाच आता सेवा क्षेत्राचा आहे, आणि औद्योगिक क्षेत्र मात्र जवळपास जसं होतं तसंच आहे। म्हणजे याचा अर्थ त्याचा विकास झाला असं नाही, विकास तर झालाच आणि सर्वच क्षेत्राचा विकास हा झालेला आहे। पण पूर्वी 54-55% आपल्या जीडीपी मध्ये जो कृषी क्षेत्राचा हिस्सा होता, आज 54-55% सेवा क्षेत्र आहे आणि 30% जवळपास औद्योगिक क्षेत्र आहे। ते त्यावेळेस 24 ते 25% होतं आणि औद्योगिक क्षेत्राचा आज 14 ते 15% हिस्सा आहे। तर याच्यावरून आपल्याला असं लक्षात येतं की या तिन्ही क्षेत्रामध्ये बदल होत आहेत, पण औद्योगिक क्षेत्रामधला जो बदल आहे जीडीपी मध्ये तर तो फारसा बदललेला नाही। पण आपले जे सर्व भिस्त आहेत रोजगाराच्या संदर्भातले असेल किंवा आणखीन इकॉनॉमिकच्या संदर्भातले असेल तर ती components of our language, and it is an essential tool of learning for learners. 21st century education has to prepare these learners to adapt to social and technological changes that are arts, commerce, and science. From
nation demonstrates that the place occupied by books in the scale of values of those responsible for their promotion is of first importance. All state, community and school authorities, every teacher, parent and pedagogist must be seriously convinced to the importance of reading and books. Honorable dignitaries of the dais and of the dais, I, Makaranda Ramrao Wakre, MSS Arts, Commerce and Science College, Amber, would like to present my research paper on the subject of how contemporary literary trends shape English literature in 21st century. This is the topic of my research paper. As we know, nowadays, some contemporary literary trends not just shaping English literature, but try to changing the impact of literature on the reader's mind. That is more important, what I think. The aim of my research paper to study and investigate the proper impact of contemporary literary trends, how it works, how they can convert our minds, convert our thoughts. That is the main aim of my research paper. Some literary new genres or new trends, just like web series, e-book technology, blogging, views and counter views. These are the very important trends nowadays. Literature is what we feel, what we think, what we observe. It is all about our thinking. So, what we feel, what we observe,